Hello students of class 7th. Today we will discuss over notebook work of chapter number 3rd named Gopal and the Hilsa fish. First of all, you have to make a picture on your own. In question number B, you have to write down some hard words. First one is fishmongers. Fishmongers are persons whose job is to sell fish. ऐसे लोग जिनका काम मछलियों को बेचना होता है. Second, believe. It means to feel sure that something is true. किसी चीज़ का विश्वास करना कि वो सच है. Third, courtiers. Persons who advise king. ऐसे लोग जो राजा को सलाह देते हैं. Fourth, guilty. Being responsible for doing something wrong. किसी चीज़ का के गलत होने का जिम्मेदार होना. Fifth, challenge. किसी को चुनौती देना. Sixth, smearing. Smearing means to apply a coat or sprinkle. किसी चीज़ का छिड़काव करना या किसी चीज़ का लेप लगाना. Seventh, disgraceful means shameful, शर्मनाक. Eighth, comical. It means funny, मजाकिया. Ninth, crazy. It means very silly or foolish, पागल. 10th, ridiculous. It means very silly, बेवकूफ़ी भरा. Now, in question number C, you have to write down word meanings. First one is fishmonger, a person whose job is to sell fish. We have discussed about it earlier also. Second, huge, extremely large in size or amount, बहुत बड़ा. Third, downcast means looking down, नीचे की तरफ देखना. Fourth, temper, the way you are feeling at a particular time. किसी समय पर किस तरीके से सोचा जा रहा है या फील किया जा रहा है उसको हम टेम्पर कहते हैं. Rags, clothes that are very old and torn. ऐसे कपड़े जो बहुत पुराने हो चुके हैं और फट चुके हैं. Sixth, crazy, very silly और foolish. We have discussed about it earlier also. Next, question number D. In question number D, you have to make sentences with the words given here. First, believe, विश्वास करना. Second, temper, किसी चीज़ को हम किस तरीके से फील करते हैं, टेम्पर. Third, smearing, किसी चीज़ का लेप करना या छिड़काव करना. Fourth, began, किसी चीज़ को स्टार्ट करना. Fifth, impossible, असंभव, जो संभव माना नहीं जाता. Next is synonyms. First one is silent, चुपचाप, and its synonym is noiseless, जो आवाज़ नहीं करता. Second, comical, its synonym is funny और humorous, ऐसी चीज़ जो हमें हंसाती हो. Third, throw, किसी चीज़ को फेंकना और इसकी सिनोनिम हो गई फ्लिप. Fourth, फैशन, फैशन ऐसा फैशन जो ट्रेंड में हो, जो इन दिनों चल रहा हो. Fifth, एंटोनिम्स. फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना और इसका एंटोनिम हो गया रिजेक्ट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना. सेकेंड, डिसग्रेसफुल, शर्मनाक. ऑनरेबल, किसी चीज़ को सम्मान देना, सम्माननीय. थर्ड, रीच्ड, पहुंच गया. और डिपार्टेड, वहाँ से निकल गया. फोर्थ, इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना या उसमें इंटरेस्ट दिखाना. और फोर्थ, बोर्ड, उस चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. First is, why did the king want no more talk about the Hilsa fish? King Hilsa fish के बारे में और कोई बात क्यों नहीं करना चाहता था? It was the season of Hilsa fish as everyone was busy talking about it. ये Hilsa fish के सीज़न का समय था और सभी लोग आसपास इसी की बातें कर रहे थे. The king was fed up of the talks about Hilsa fish. King इन सबको सुन सुनकर परेशान हो चुका था. Moreover,
He did not want his courtiers to waste their time on these talks which would affect their work. और किंग नहीं चाहता था कि कोर्टियर्स अपना समय इस चीज़ में बर्बाद करें और अपने वर्क को अफेक्ट करें. Second question is, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? किंग ने गोपाल से ऐसा क्या पूछा जिससे पता चल जाए कि गोपाल बहुत ही क्लेवर था. Time and again, king used to test Gopal. Repeatedly, king गोपाल को समय समय पर टेस्ट करते थे. So this time he asked Gopal to buy a hilsa fish and bring it to the palace crossing the bazaar, without anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever. तो किंग ने क्या कंडीशन दी कि गोपाल को एक बड़ी सी हिल्सा फिश बाज़ार से लेकर आना है चौराहे से पार करते हुए, और उसे कुछ ऐसा करना है ताकि लोग उसके हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें. इससे पता चल जाएगा कि वो कितना क्लेवर है. What 3 things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश? हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने 3 चीज़ें ऐसी क्या क्या की. गोपाल हाफ शेव्ड हिज beard. गोपाल ने अपनी दाढ़ी आधी बनाई. Smeared himself with ash. राख से अपने आप को स्मेयर कर लिया, मतलब अपने ऊपर लेप लगा ली. एंड वोर डिसग्रेसफुल रैग्स बिफोर ही वेंट आउट टू बाय हिज हिल्सा फिश. और उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए इससे पहले कि वो हिल्सा फिश खरीदने गया. हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? गोपाल पैलेस के अंदर कैसे गया जब उसने हिल्सा फिश को खरीद ली? गोपाल बॉट हिल्सा फ्रॉम द मार्केट एंड रीच द किंग्स पैलेस इन सच गेटअप. गोपाल ने मार्केट से हिल्सा फिश खरीदी और उसी गेटअप में पैलेस पहुंच गया. द गार्ड्स रिफ्यूज टू ओपन द गेट फॉर अ मैडमैन एज दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम. गार्ड्स ने उसके लिए गेट खोलने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो गोपाल को पहचान नहीं पाए. दे डिड नॉट अलाउ हिम टू मीट द किंग. उन्होंने राजा से मिलने से भी मना कर दिया. देयरफॉर ही बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली. इसीलिए गोपाल ने डांस करना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया. ऑन हियरिंग हिज लाउड सॉन्ग द किंग सेंड हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट. और यह सुनकर राजा ने अपने मैसेंजर को गोपाल को अंदर लाने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. गोपाल जिस हिल्सा फिश को लेकर आया था उसके बारे में लोग बातें क्यों नहीं कर रहे थे? ऐसी क्या रीज़न थी? गोपाल फनी अपीयरेंस attracted the attention of people much more than the hilsa fish. गोपाल ने जिस तरीके से ड्रेसिंग की थी उससे लोगों का ध्यान उसके तरफ ज़्यादा जा रहा था और वे हिल्सा फिश पर ध्यान नहीं दे रहे थे. At that time no one was caring about hilsa fish he was carrying. और उस समय हिल्सा फिश जो गोपाल ने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि लोग गोपाल को देखने में ही बिजी थे. एवरीवन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड अपीयरेंस, हाफ शेव्ड फेस एंड रैग्स. सभी लोग उसके एक पागल के जैसा दिखने वाला अपीयरेंस और उसकी आधी बनी हुई दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े के बारे में बातें करने में लोग बिजी थे. In the next video, we will discuss about bookwork. Thank you.